Hello dear students, today we will discuss worksheet number 19, class 9th science, the fundamental unit of life. Jigyasa Didi, we know that the cell is the basic functional unit of life, but what are life process and how does a cell perform them? Gyan, as you know that all living organisms possess special traits like they grow, excrete, need food, inhale, exhale, respiration, etc. All these necessary activities are known as life process. These are performed in every living cell by exchange of necessary substance. Cell has a special component called cell organelles and every organelle perform specific task. Cell is able to perform all its function because of these organelles. Every cell has plasma membrane, nucleus and cytoplasm. These help the cell to perform various activities. यानी cells हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करते हैं अपने ऑर्गेनल की हेल्प से. मेन पार्ट सेल के हो गए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. और प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है. दीदी, व्हाट इज प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या है और इसका क्या फंक्शन है? ज्ञान, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल in and out of the cell. Only certain material can pass through it, therefore called selectively permeable membrane. इसको selectively permeable membrane कहते हैं क्योंकि कुछ ही चीज़ों को, आवश्यक चीज़ों को बाहर जाने देती है और अंदर आने देती है. ठीक है. The necessary material like O2, CO2, nutrients and water etc. can enter or exit the cell through a plasma membrane by diffusion and osmosis process. Movement of a substance from a region of high concentration to the region where its concentration is low is called diffusion. यानी डिफ्यूजन में जहाँ ज़्यादा से कम की ओर मूवमेंट. तो जहाँ वाटर ज़्यादा होता है वो वाटर सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ अंदर पहुँच जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ. आप देख लेंगे आगे. डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन on a cell on the basis of concentration of water solution is of three type. Hypotonic solutions that have more water than cell. The cells swell up, increase in size due to endoosmosis. यानी जिसमें वाटर ज़्यादा होगा, जिस सॉल्यूशन में, उसको हाइपोटोनिक कहेंगे. तो उसमें अगर सेल डालेंगे कोई तो फूल जाएगा क्योंकि सेल की कंपेरिजन उसमें ज़्यादा वाटर है. तो ऑस्मोसिस होगा एंडोऑस्मोसिस, अंदर की तरफ ऑस्मोसिस. Isotonic solution, the concentration of water in solution and cell is same, no change in shape. Isotonic में सेल के अंदर भी सेम कंसंट्रेशन है वाटर की और बाहर भी, तो कोई चेंज होगा ही नहीं, पानी कहीं नहीं जाएगा. Hypertonic solution that have less water than cells rings decrease in size due to exosmosis. Hypertonic solution में क्या होगा कि solution that have less water, उसमें सेल से भी कम वाटर होगा तो सेल का वाटर भी वो ले लेगा. ठीक है. तो बाहर निकल जाएगा सेल का वाटर, तो श्रिंक हो जाएगी सेल. सिमिलरली द सॉल्युबल सब्सटेंस डिफ्यूज इनसाइड द सेल विद वाटर. इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑन रेड ब्लड सेल्स. तो आइसोटोनिक में तो सेम रहेगा बिल्कुल, है ना. हाइपोटोनिक में वो फूल जाएगा क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है तो पानी इसके अंदर भर जाएगा. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये सिकुड़ जाएगी क्योंकि बाहर पानी कम है तो अंदर से वाटर बाहर आ जाएगा. प्लांट सेल also has cell wall in addition to the plasma membrane. When plant cell lose water through osmosis, the cell content gets shrinked away from the cell wall along with the plasma membrane. This phenomenon is known as plasmolysis. ठीक है. यानी कि जब पानी की अंदर कमी हो जाती है तो प्लांट सेल वाटर को लूज कर देता है ऑस्मोसिस से, और जो सेल कंटेंट जितने भी हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और सेल वॉल से दूर हो जाते हैं. इसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. आप ये देख सकते हैं इसका डायग्राम. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन की इम्पोर्टेंस आप यहाँ से लिख सकते हैं. दिस की जगह लिख देंगे सेल मेम्ब्रेन. Cell membrane is the outermost covering of the cell. The plasma membrane allow
the entry and exit of some necessary material in and out of the cell. Only certain material can pass through it, therefore called selectively permeable membrane. The necessary material like oxygen, carbon dioxide, nutrients and water etc. can enter or exit the cell through plasma membrane by diffusion and osmosis process. बस यहाँ तक कर लेंगे. और इट प्रोटेक्ट द सेल ऑल्सो, सेल की रक्षा भी करती है. 2 पॉइंट लिख सकते हैं. एक्सप्लेन प्लाज्मोलिसिस विद ए डायग्राम, तो ये तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर लो, पूरा डायग्राम बना लो. When plant cell loses water through osmosis, the cell content gets shrinked away from the cell wall along with plasma membrane. This phenomenon is known as plasmolysis. और ये डायग्राम बना लेंगे. Which part of the cell is permeable? तो which part permeable है भाई, तो इसमें आप लिख देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, ठीक है, या सिलेक्टिवली परमेबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. ओनली सर्टेन मटेरियल कैन पास थ्रू, इज देयरफॉर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल. तो सिलेक्टिवली परमेबल है, परमेबल नहीं है. परमेबल का मतलब उसमें सब कुछ पास हो सकता है, तो दिस इज द सिलेक्टिवली परमेबल. ठीक है, तो यहाँ से लिख दो आप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर और यह सिलेक्टिवली परमेबल. तो बाहर लगा देते निशान यहाँ से यहाँ तक. What changes will occur in resin and RBC when they are placed inside a hypotonic solution? Hypotonic solution ये रहा, ठीक है. तो hypotonic solution में they will swell up. And why? तो why के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं solution that have more water than cell, the cell swell ups increase in size due to endoosmosis. ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी वर्कशीट हो गई. आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं.